गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी सैनी, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बॉटनी पेपर। लास्ट recording of discuss the plant disease Sclerospora graminicola, so cause disease of green ear disease of bajra. And next discuss the few minutes are discussed of last disease Sclerospora graminicola caused from green ear disease of bajra. Green ear disease of bajra caused by Sclerospora graminicola. So already discussed the disease Sclerospora graminicola. Disease terms are host, pathogens, systematic positions, etiology, epidemiology and classifications, and last are disease cycles and then disease controls. So already discussed the topics, and then next topics are discussion second subdivision zygomycotina, and already discussed the mastigomycotina. According to Ainsworth, fungus are divided into two divisions, Eumycota and Mycota. Eumycota fungi are divided into 5 subdivisions, and first subdivisions are mastigomycotina and second subdivisions are zygomycotina. And first divisions are mastigomycotina, already discussed characters, specific features and orders and class, and then today discuss the topics of second classifications according to Ainsworth. Fungi divided into two divisions, Eumycota and Mycota. Eumycota have a 5 subdivisions. 5 subdivisions. First subdivisions have a mastigomycotina, and second zygomycotina, and third ascomycotina, and fourth basidiomycotina, and last deuteromycotina. Mastigomycotina are discussed already, and mastigomycotina are disease caused of two types. First disease are caused by albugo, and second disease are cause of Sclerospora. Albugo are caused of white rust of crucifer, and second disease are caused of green ear disease of bajra. White rust of crucifer and second disease are cause of green ear disease of bajra. And next today discuss our topics of second subdivision mastigomycotina.
So discuss the topics of Mastigomycotina. Zygomycotina is subdivisions of fungus. It is a special features and general features. Special features are included only subdivisions and general features are included of subclasses, classes, division, order and class. So second subdivision, Zygomycotina. Zygomycotina. So special features, Zygomycotina have a special features like it is a saprophytic fungus. Zygomycotina is a saprophytic fungus and Mastigomycotina is a fungus of parasitic fungus. So it is a saprophytic. So it is a belong to dead body of plants and animals. Dead body of plant and all animals live on saprophytic fungi like a Mastigomycotina. First characters. And second characters, it is a cell wall make a chitin. Cell wall a chitin, make a chitin. It is a saprophytic fungus. Zygomycotina cell wall make a chitins and the reproductions are completed to two equal and unequal gametangia. So isogamous and oogamous types of reproductions and homogametangial and heterogametangials. तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए कि जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया हैव ए टू टाइप्स, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस. तो होमोस्पोरस आर homogametangial and heterosporous are heterogametangial. Homogametangial, heterogametangials. So Zygomycotina have a sporangias are two types and sporangia are germinations and then formation of a spore. So spore are 2n and sporangia formations then after germination meiosis. So next stage are germinations times meiosis. Before germination,
One time meiosis are completed to the sporangia, homosporous and heterosporous conditions. The before germinations are all total spores are division. First, meiosis divisions. Meiosis divisions like asexual reproductions, but asexual reproductions are completed into sporangia. कि asexual reproductions completed to sporangia and conidia. Sporangia and conidia. Sporangia are formation of spore and conidia are formation of conidiophore. So asexual reproductions are completed like a mastigomycotina because asexual reproductions are completed sporangia and conidia. Sporangia formation of sporangiophore and conidia are formation of conidiophore. Conidiophore formation of a conidial branch and sporangial are formation of sporangial branch. Tip parts. Tip part are round shape, oval shape, heart shape, kidney shape and including of spores and conidias. But mycelium, Zygomycotina mycelium have a coenocytic, so multinucleate positions, coenocytic, so multinucleate positions and thallus are present. Thallus and plant bodies are formation of thallus like structures and thallus are coenocytic positions and it is a mycelium formations and septa are formations two types. For diagrams explain of diagrams कि इनके जो माइसीलियम बनते हैं उन माइसीलियम के अंदर जो सेप्टा बनते हैं उन सेप्टा के द्वारा इनका जो थैलस होता है वो क्या होता है, दो में डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि ये एक माइसीलियम है, माइसीलियम ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये हैं न्यूक्लियस, ये है माइसीलियम, ये है माइसीलियम की ब्रांच, ये क्या है न्यूक्लियस की, माइसीलियम की ब्रांच है। अब यदि ये न्यूक्लियस एक सेप्टा का फॉर्मेशन करें, एक पट का फॉर्मेशन करें, जैसे ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये हैं सेप्टा। तो इन सेप्टाज के द्वारा क्या होता है कि इनका जो माइसीलियम है वो अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या बन जाएंगे, माइसीलियम सेगमेंट्स, ये क्या होंगे, माइसीलियम के सेगमेंट्स होंगे। अब ये माइसीलियम के जो सेगमेंट्स हैं
वो किसके द्वारा बने, सेप्टा के द्वारा बने, कि इनका जो सेप्टा है उसने इस माइसीलियम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस को और माइसीलियम के अंदर साइटोप्लाज्मा को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। तो सेप्टा क्या करता है, माइसीलियम जो होते हैं, माइसीलियम की जो ब्रांच होती है उनको क्या करता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, यानी कि माइसीलियम के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनके अंदर इनको ये डिवाइड कर देता है। तो जाइगोमाइकोटिना के जो सब डिवीज़न है, इसके सब डिवीज़न के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक मैस्टिगोमाइकोटिना टाइप का जो सब डिवीज़न था उसके अंदर सेप्टा एब्सेंट थे, केवल जो ये माइसीलियम है ये ब्रांच्ड था। लेकिन जाइगोमाइकोटिना के सदस्यों के अंदर ये ब्रांचिंग किसके द्वारा होती है, सेप्टा के द्वारा। तो हम इसके लिए कुछ कैरेक्टर लिख सकते हैं क्या, कि जाइगोमाइकोटिना जो सब डिवीज़न है, इस सब डिवीज़न के अंदर जितने भी माइसीलियम है, इन माइसीलियम का न्यूक्लियस और इसके साथ इसके अंदर उपस्थित जो साइटोप्लाज्मा है, ये साइटोप्लाज्मा एक सेप्टा के द्वारा क्या हो जाता है, छोटी छोटी ब्रांच के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब जैसे अपन इसको सेपरेट करके बताएं कि ये माइसीलियम था, एक सेप्टा के द्वारा इतना माइसीलियम जो है वो सेपरेट हुआ। जैसे ही इसको क्या मिलेंगी, एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये जो फ्रैगमेंट्स है एक माइसीलियम का, ये वापस क्या करेगा, अपना जर्मिनेशन करता है और इसके जर्मिनेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन कर देता है, वापस ये एक माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जाइगोमाइकोटिना के जो सब डिवीज़न है, इसके सब डिवीज़न के अंदर जितने भी माइसीलियम होते हैं, ये सारे माइसीलियम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्मेशन में किसके द्वारा सबसेक्ट हो जाते हैं, ये किसके द्वारा सेपरेट हो जाते हैं, एक सेप्टा के फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं। तो जाइगोमाइकोटिना जो सब डिवीज़न है, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाता है कि इसका माइसीलियम जो है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है। तो नेक्स्ट नंबर जो कैरेक्टर है वो अपन लिखेंगे सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम। ये क्या है, इसका एक सेप्टेट माइसीलियम का कैरेक्टर है कि इनका माइसीलियम कैसा होगा, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, इसलिए सेप्टेट माइसीलियम होगा। ये तो स्पेशल कैरेक्टर हुए किसके, सब डिवीज़न मैस्टिगोमाइकोटिना के। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटिना, इसकी दो क्लास हैं, एक जाइगोमाइसिटीज इसकी क्लास है और एक जो क्लास है वो है इसकी ट्राइकोमाइसिटीज। तो जो जाइगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है, इसको भी दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक जाइगोमाइकोटिना और एक ट्राइकोमाइसिटीज। जाइगोमाइकोटिना और ट्राइकोमाइसिटीज। तो ये तो हुआ सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना, एंड देन डिवाइडेड इनटू टू क्लास। फर्स्ट क्लास ए जूमाइसिटीज, और इसी का दूसरा नाम होता है जाइगोमाइसिटीज। एंड सेकेंड क्लास ट्राइकोमाइसिटीज। So Mastigomycotina division are divided into two class, Zygomycetes and Trichomycetes. And Zygomycetes are special class, so it is important class, and the Trichomycetes are not special features. So Trichomycetes is a simple
क्लास। अब अपन बात करते हैं स्पेशल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जाइगोमाइसीटीज क्लास। तो नेक्स्ट हेडिंग जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जाइगोमाइसीटीज क्लास। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जाइगोमाइसीटीज क्लास। नाम है जाइगोमाइसीटीज क्लास, सब डिवीजन था जाइगोमाइकोटिना। तो कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होंगे जो इसके जाइगोमाइकोटिना की जैसे ही होंगे, बट कुछ इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। तो पहले अपन सिंपल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि जो जाइगोमाइकोसिटीज है इसके, जैसे इसके सारे सदस्य सेप्रोफाइटिक थे, तो ये भी सारे सदस्य कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं ये भी। जैसे जाइगोमाइकोटिना की जो सब डिवीज़न थी उसके मोस्टली सदस्य कैसे थे, सेप्रोफाइटिक थे। तो जाइगोमाइसीटीज जो क्लास है इसके सदस्य भी कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। यानी कि ये किसके फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, एक सेप्रोफाइट्स के फॉर्मेशन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। जैसे जाइगोमाइकोटिना जो क्लास थी उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटोसॉन काइटिन की बनी हुई होती है। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटोसॉन और काइटिन किसकी बनी हुई होती है, काइटोसॉन और काइटिन इन दोनों से बनी हुई होती है। जबकि एक जाइगोमाइकोटिना जो था उसकी सेल वॉल ओनली काइटिन से बनी हुई थी। इसकी सेल वॉल का एक स्पेशल फीचर्स हो जाता है क्या, कि ये काइटिन के साथ साथ किसकी बनी हुई है, काइटोसॉन की सेल वॉल भी बनी हुई होती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंटर के चारों तरफ पाए जाने वाला सेंट्रियोल जो है इसके अंदर वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर्स है कि इसके अंदर सेंट्रियोल जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस तो जो है पूरी फंगस जो है उनके अंदर लगभग इक्वल सी ही होती है कि पहले वही प्लाज्मोगेमी की क्रिया होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद में उसमें कैरियोगेमी की क्रिया होगी, और कैरियोगेमी के बाद में लास्ट स्टेज के अंदर उसमें मियोसिस होगा। वैसे ही इसकी अपन बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंप्लीट होता है इसके अंदर वो एक ए प्लेनोस्पोर द्वारा होता है, यानी कि ज़ूस्पोर नहीं बनते। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है जो एक मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर था कि उसके अंदर बनने वाले सारे स्पोर जो थे वो ज़ूस्पोर थे, यानी कि उनके ऊपर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थी। लेकिन जाइगोमाइसीटीज के जो सदस्य हैं उन सब के अंदर क्या है, ज़ूस्पोर जो है वो एब्सेंट होते हैं। स्पेशल फीचर्स है ये इसका कि इसके अंदर ज़ूस्पोर जो किससे बनते थे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कशन किया था कि एक एंथ्रिडिया और एक ऊगोनिया, एक एंथ्रिडिया और एक ऊगोनिया जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में जो कांटेक्ट वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो जो एंथ्रिडियल स्पोर होते हैं वो ऊगोनिया की स्पोर, ऊगोनियल जो वॉल होती है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और जो ऊगोनिया के अंदर प्रेजेंट स्पोर होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, वो फ्यूजन करते हैं, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और जो हैप्लॉइड स्पोर थे वो डिप्लॉइड स्पोर के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, और जो डिप्लॉइड स्पोर है जैसे ही वो मैच्योर होते हैं अपनी सेल वॉल से बाहर आते हैं तो वो किसके फॉर्मेशन में होते हैं, एक ज़ूस्पोर के फॉर्मेशन में होते हैं। लेकिन नाम है जाइगोमाइकोटिना, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन
बनने वाले सारे स्पोर जो स्पोर के फॉर्मेशन में नहीं होते। सो हम क्या कह सकते हैं, फ्लैजिला आर एब्सेंट ऑन स्पोर। स्पोर के ऊपर ये फ्लैजिला क्या होगी, एब्सेंट होगी। जैसे ये रेस्टिंग स्टेज में आते हैं तो इनके चारों तरफ जो वॉल फॉर्मेशन होती है, उस वॉल फॉर्मेशन के अंदर फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाई जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए कि बनने वाले oospore किसके द्वारा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स के द्वारा नहीं, बल्कि एक कॉपुलेशन ट्यूब, इसके द्वारा, एक कॉपुलेशन ट्यूब्स के द्वारा क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि ये oospore जो है वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा जो है वो oogonia, एंथ्रीडिया से oogonia में एंटर नहीं करते, बल्कि जाइगोमाइकोटिना के अंदर ये oospore जो स्पोर थे वो किसके द्वारा, एक कॉपुलेशन ट्यूब के द्वारा, एक कॉपुलेशन इस ट्यूब के द्वारा क्या करते हैं, वो इसकी स्पोरेंजिया के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही ये कॉपुलेशन ट्यूब बनती है, इस कॉपुलेशन ट्यूब का काम ही क्या होता है कि ये ट्यूब कॉपुलेट करती है, उसको कॉन्जुगेट करती है। जैसे कॉन्जुगेशन की जैसे काम करती है, तो जो एंथ्रीडिया के अंदर प्रेजेंट स्पोर थे यानी कि मेल स्पोर, वो oogonia के अंदर प्रेजेंट जितने भी स्पोर होते हैं उन सब के क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे वो आते हैं तो एक राउंड शेप फॉर्मेशन में स्पोर का निर्माण करते हैं। ये राउंड शेप वाले जो oospore होते हैं, ये zoospore नहीं, oospore। सो oospore are round shape but without flagella, and then meiosis and the last stage are germination। ये हुआ अपना जाइगोमाइसिटीज। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो जाइगोमाइसिटीज फंगस है, जाइगोमाइसिटीज, इस जाइगोमाइसिटीज फंगस जो क्लास है इसके भी 3 ऑर्डर हैं। ट्राइकोमाइसिटीज की बात नहीं कर रहे अपन, ओनली डिस्कस द जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज हैव ए 3 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर आर म्यूकेरेल्स। ऑर्डर में हमेशा सफिक्स जो है वो क्या लगता है, एल्स। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो है म्यूकेरेल्स, दूसरा जो ऑर्डर है वो है जूपेगेल्स, और जो थर्ड ऑर्डर है इसका वो है एंटोमोपैथोरेल्स। म्यूकेरेल्स, जूपेगेल्स, एंटोमोपैथोरेल्स, 3 ऑर्डर्स ऑफ ए जाइगोमाइसिटी क्लास। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंसवर्थ, तो जो 5 सब डिवीज़न थे उनमें भी जो अलग अलग सब डिवीजन्स हैं उनमें भी हम उनके क्लास, उनके ऑर्डर्स को भी क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। जैसे हमने जाइगोमाइकोटिना जो है उसकी 2 क्लास बनाई, एक oomaisites, एक ट्राइकोमाइसिटीज। तो जो oomaisites थी अब उसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं, एक है म्यूकेरेल्स, एक है जूपेगेरेल्स और एक है एंटोमोपैथोरेल्स। तो ये जो 2 ऑर्डर हैं ये तो ऐसे हैं जिनका कोई स्पेशल प्रकार का फीचर्स नहीं है, जनरल कैरेक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि इनकी सेल वॉल जो है वो काइंटिन की बनी हुई होगी।